Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, students. Students, today we are going to start the work of English B, that is applications. I have already discussed in the previous lecture the format of application, but let it revise in a little bit more explanation. Listen, bache, whenever you start writing an application, you have to follow the standard format of writing an application. What is the standard format of writing an application? See here, bache, whenever you want to start an application, you have to start from the very beginning of the line. See here, the principle. Keep it in your mind that T of D and principle of P should be capital. Number one, you have to start from the start of the line. See here, here is a margin line. This one. This is the margin line, a little bit dim, but still it is visible. Start from the very start of the line. The principle T and P must be capital. One thing you must keep in your mind is the correct spelling of the principle. Most of the students write P-R-I-N-C-I-P-L-E, principle, asul, which is a blunder, not a mistake. So you have to learn the spelling of principle correctly, right? Then you have to put a comma over here, the principle, then you have to put a comma over here. Then in the next line, just below the principle D, just below the T, you have to put P of Peshawar. Peshawar Model School. P should be capital, M should be capital, and S should be capital. Peshawar Model School, then you have to put a comma over here. Then Charsadda, C of Charsadda must be right below P and T. This should be in a proper column, okay? Charsadda, C of Charsadda should be capital, and after writing the full spelling, you have to put a full stop over here, okay? Then once again, the principle T should be capital, P should be capital, spelling of principle should be correct. Put a comma over here. Then right before, right below T, you have to put P, Peshawar Model School. P should be capital, M should be capital, S should be capital. Then put a comma over here. Just below T and P, you have to write Charsadda C. You have to put C. C should be capital. And then after writing full spelling, you have to put a full stop over here. Then you have to leave one line space. One line space so that your writing must be neat and clean and your presentation looks good. Then just below C of Charsadda, you have to write S of subject. Subject. S should be capital, then put a colon over here. This one, note it, put a colon over here. Then you have to write the purpose. For what purpose you are going to write an application? Here, suppose you are going to write an application for sick leave. So you have to write request for sick leave. See here, R should be capital, S should be capital, and L should be capital. Keep it in your mind that if there comes a proposition, an article, then you have to write it in small letters. No need for writing F in capital letter. You have to write request R in capital, sick ka S in capital, and leave ka L in capital, right? Then you have to underline the subject. You have to underline the subject so that it must be highlighted. The purpose of writing an application must be highlighted. Okay, one thing more, bache. This portion,
the principal, Peshawar Model School, Charsadda. This portion is called start of the application, also known as salutation. पेशावर मॉडल स्कूल के बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी, चारसद्दा के बाद आप लोगों ने एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लोग एक लाइन छोड़ दोगे, ठीक है, एक लाइन छोड़ दोगे। नेक्स्ट लाइन पे आप लोग आ जाओगे रिस्पेक्टेड मैडम। सो कीप इट इन योर माइंड दैट R of respected should be just below S of subject. Now see here from the very start, see here that T, P, C, S and R. All these letters are in a proper column. All these comes in one single column. See here, T, P, C, S and R. All these are in proper column. So respected madam, R of respected and M of madam should be in capital letters. After writing madam, you can also write sir, madam or sir. That's no problem, okay? So put a comma over here after madam. Then most of the students commit this mistake that they start an application just below the comma of madam. This is not the standard format, right, Bachi? According to our latest standard format, we have to start application from the very start of the line. So keep it in your mind that whenever you write an application, you have to write from the very start. You have to write from the very start of the line. Okay, see here, respected madam, be just below R of respected, I have written here with. W should be capital, with great respect. Okay? Then you have to write the purpose, for what purpose you are going to write an application with great respect. It is stated that I am suffering from fear. Okay? आप ये लिखिए, therefore I cannot come to school. यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बात पूरी कर ली, यहाँ तक आप लोगों ने अपनी बात पूरी कर ली। तो फिर आप लोग एक लाइन यहाँ पर छोड़ दोगे बच्चे, फिर नीचे आ जाओगे therefore भी आप लोग लाइन के स्टार्ट से शुरू करेंगे। तो वंस अगेन मैं आपको बताता चलूं, देयर का T, विद का W, रिस्पेक्ट का R, सब्जेक्ट का S, चारसद्दा का C, पेशावर का P और द प्रिंसिपल का T। ये सारे एक ही कॉलम में यहाँ पे देखिए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारे एक ही कॉलम में आ रहे हैं। फिर आप लोग अपना रिक्वेस्ट लिख लोगे, therefore you are requested to grant me 1 day leave, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चे। इसके बाद आप लोग दो तरह से आप लोग थैंक्स अदा कर सकते हैं। या तो आप लोग सिंपली लिखो थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़कर लिखो थैंकिंग यू। अगर आप लोग सिर्फ थैंकिंग यू लिखना नहीं चाहते तो आप लिख सकते हैं कि आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। लेकिन ये थैंकिंग यू अच्छा रहेगा। थैंकिंग यू के बाद आप लोग लगाओगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी कॉलम, इसको बच्चे एक्सक्लेमेटरी कॉलम कहते हैं, ठीक है। थैंकिंग यू का T भी कैपिटल होगा, सही है बच्चे। इसके बाद आप आ जाएंगे यूअर्स ओबेडिएंटली, यूअर्स का Y कैपिटल होगा और ये जस्ट बिलो T आएगा और यहाँ पे कोई एपोस्ट्रोफी नहीं होगी, ये याद रखिए। बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यहाँ पे कोई एपोस्ट्रोफी नहीं होगी, सही है। यहाँ पर ओबेडिएंटली का O स्मॉल आएगा, ओबेडिएंटली के बाद कोई कॉमा नहीं होगा, सही है बच्चे। फिर आप लोग यहाँ पर अपना नेम लिख लेंगे, जो आपका नेम है वो लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग अपना क्लास लिख लेंगे, सही है। आप अपना क्लास यहाँ पर मेंशन कर लेंगे और क्लास के बाद फिर जब आप लोग डेट लिखोगे तो डेट का ये फॉर्मेट होना चाहिए 25 मई, 2021 फुल स्टॉप, ठीक है बच्चे।
ये आप लोगों की एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। आप लोगों ने घर में रफ कॉपी में इस चीज पे प्रैक्टिस करनी है, जो आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इसे आप लोग अपने माइंड में रखें और इस पे रिटन प्रैक्टिस करें। याद रखें, एप्लीकेशन की अगर 5 मार्क्स है तो 1 मार्क जो है वो स्टार्ट का होता है, 2 मार्क्स जो है ये बॉडी का। ये जो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया ना कि विद ग्रेट रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट, यहां से लेकर यहां तक इसको कहते हैं बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। ये आप लोगों का बॉडी ऑफ एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग अपना पर्पस बयान करते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये एरिया इसको क्लोजिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन के 5 नंबर है तो 1 नंबर आप लोगों के स्टार्ट का हो गया, 3 नंबर आप लोगों के हो गए बॉडी की और 1 नंबर आपका हो गया क्लोजिंग का, ठीक है। तो इसको कहते हैं बच्चे ये 5 मार्क्स का एप्लीकेशन हो गया। तो आप लोगों ने इस चीज का केयर करना है, ठीक है। आप लोगों ने सैल्यूटेशन भी सही लिखनी है, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन भी सही लिखनी है और क्लोजिंग भी सही तरीके से करनी है ताकि आप लोगों से मार्क्स ना कटे। इसको बच्चे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं और एक्सक्लेमेटरी कॉलम कहते हैं, सही है। इसके बाद आते हैं बच्चे हम अपने आज की एप्लीकेशन की तरफ। आज हम जो एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं ये है फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन। आप लोगों पर किसी वजह से जुर्माना लगा हुआ है और आप लोग अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना चाहते हो कि आप लोगों को वो फाइन रिमिट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये एप्लीकेशन है, सही है बच्ची। साथ साथ में स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी इस एप्लीकेशन पर अप्लाई करता जा रहा हूं, आप लोग देख ले। यहाँ पे देखिए बच्चे, स्टार्ट में है दी प्रिंसिपल, दी का टी और प्रिंसिपल का पी कैपिटल है। फिर यहाँ पे देखिए हमने कामा लगाया हुआ है। फिर है पेशावर मॉडल स्कूल, पेशावर का पी, मॉडल का एम और स्कूल का एस कैपिटल है। यहाँ पे है, फिर मैंने लगाया है कामा। यहाँ पे 4 सद्दा है, 4 सद्दा के बाद यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग फुल स्टॉप लगा लोगे, सही है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एस, 4 सद्दा का सी, पेशावर का पी और दी का टी देखिए एक ही कॉलम में आ रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद कॉलम लगाया हुआ है। फिर है देखिए रिक्वेस्ट फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, रिक्वेस्ट का आर, रिमिशन का आर और फाइन का पी कैपिटल है। ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, इसमें हमने कोई लेटर कैपिटल नहीं किया हुआ है। फिर है इसके बाद है रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, तो रिस्पेक्टेड का आर, सर का एस और मैडम का एम कैपिटल और फिर बाद में आया है कॉमा। कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ओबेडियंटली के बाद कॉमा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया ना कि नहीं होगा। और बुकलेट में टेस्ट, वो जो टेस्ट दी गए हैं उनमें वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स एंड टेंसेस है और क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये आप लोग कहां से याद करोगे? ये आप लोग याद करोगे अपनी बुक से। बुक में मैंने टेक्स्ट अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, और एक मैंने सबक के दरमियान से क्वेश्चन निकालकर आप लोगों को दी है। तो आप लोगों ने टेक्स्ट के दरमियान से उसके आंसर्स तलाश करके लिखने हैं, क्लियर। अच्छा, रिस्पेक्टेड मैडम के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ी हुई है, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ी हुई है, यहाँ पर भी हमने एक लाइन छोड़ी हुई है ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। अच्छा, यहाँ पे देखिए बच्चे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद का डब्ल्यू और रिस्पेक्टेड का आर, सब्जेक्ट का एस, चारसद्दा का सी, पेशावर का पी और द प्रिंसिपल का डी टी, ये सारे बच्चे ये कि एक ही कॉलम में आ रहे हैं। With due respect, it is stated that I have been fined Rs 500 for not attending classes regularly. ये भी बड़ी अदब के साथ आपको बताया जाता है कि मुझे 500 रुपए जुर्माना किया गया है क्योंकि मैंने क्लासेस बाकायदगी के साथ अटेंड नहीं की हैं। क्यों अटेंड नहीं की हैं? I could not attend the school for 2 weeks. मैंने 2 हफ्तों तक स्कूल अटेंड नहीं किया because I had been suffering from malaria. क्योंकि मैं मलेरिया के बुखार में
मुब्तला था। The doctor had advised me for full bed rest. डॉक्टर साहब ने मुझे मुकम्मल तौर पर आराम का मशवरा दिया था। My house is far away from the city. मेरा घर शहर से काफी दूर है। And there was no one to carry my application to school. और घर पर कोई भी नहीं था ताकि मेरा एप्लीकेशन स्कूल ले आते। So I could not send my application or medical certificate in time. इसलिए मैं अपनी दरखास्त या अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वक्त पर स्कूल नहीं भिजवा सका। फिर है therefore you are kindly requested to remit my fine. इसलिए आपसे इल्तिजा की जाती है कि मेरी जुर्माने को माफ किया जाए। इसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चे थैंकिंग यू है, थैंकिंग यू के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फिर यहाँ पे नीचे है बच्चे, फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे थैंकिंग यू के बाद है yours obediently, yours obediently के बाद बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। आप लोगों ने XYZ नहीं लिखना, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना क्लास लिखेंगे, फिर जिस डेट को आप लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 15 जनवरी या जनवरी 15, कोई भी डेट हो, या आप लोग डेट पहले लिखे फिर बाद में मंथ लिखे, या मंथ पहले लिखे फिर बाद में डेट लिखे, फिर यहाँ पर आप लोग कॉमा डालें, फिर आप यहाँ पर ईयर लिखें। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका आज का एप्लीकेशन। सही है बच्चे, आप लोगों को फिर से मैं ये पढ़ाता चलो कि ये हमारे पास क्या है, ये सैल्यूटेशन है, ठीक है, ये सारा सैल्यूटेशन में आता है। फिर ये रिस्पेक्टेड मैडम के बाद थैंकिंग यू तक ये हमारे पास बॉडी ऑफ एप्लीकेशन है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लोजिंग में आ जाता है। ये बॉडी ऑफ, इसे मैं एक मरतबा फिर आप लोगों को पढ़ाता हूं। With due respect, it is stated that I have been fined Rs 500 for classes regularly. बड़ी अदब के साथ इल्तिजा की जाती है कि मुझे क्लासेस बाकायदगी के साथ हाजिरी ना देने पर 500 रुपए जुर्माना किया गया है। I could not attend the school for 2 weeks because I had been suffering from malaria. मैं 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मुझे मलेरिया था। The doctor had advised me for full bed rest. डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल आराम का कहा। My house is far away from the city. मेरा घर शहर से काफी दूर है। And there was no one to carry my application to school. और स्कूल एप्लीकेशन लाने के लिए मेरे पास कोई घर पे कोई नहीं था। So I could not send any application or medical certificate in time. बस मैं अपना एप्लीकेशन या अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वक्त पर स्कूल नहीं भिजवा सका। Therefore you are kindly requested to remit my fine. इसलिए आपसे इल्तिजा की जाती है कि मेरे जुर्माने को माफ किया जाए। थैंकिंग यू, आपका शुक्रिया। मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग थैंकिंग यू की जगह आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर योर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस भी लिख सकते हैं। योर्स ओबीडिएंटली, देन यू हैव टू राइट योर नेम। After writing your name in next class, in next line, you have to mention your class and then your writing date. Right? What is your homework? Your homework is noted down. Write an application to your principal for sick leave. आप बीमार हैं, आप एक दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को दरखास्त लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर रिमिशन ऑफ फाइन की जगह लिखना है रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, और फिर यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि with due respect it is stated that I have been suffering from fever since last night. Therefore I cannot come to school today. फिर यहाँ पर लिखिए therefore you are kindly requested to grant me 1 day leave. Thanking you, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, आप लोगों ने अपने रफ कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।